Hi guys, this is Amardeep Srivastav and this is the continuation of lecture series of environment and ecology. And in this lecture, I'm going to explain you all about the term which is known as green economy. We will learn about green economy and how it is accessible to our sustainable management of development and how it's helping in eradicating the poverty and basic need of the society. Let's start with green economy. Now, what do you mean by the term green economy is that a green economy, it is a type of economy like that, green economy. It is a type of economy which aims at reducing environmental risk and ecological disturbances, and that aims for sustainable development without degrading the environment. Okay, what do you mean by the term this? Let me explain you in very simpler language like that. That is, development should be there. Development should be there, but we will have to be careful about degradation. Environment degradation मतलब कहने का क्या हुआ ग्रीन इकोनॉमी का क्या कि आप डेवलपमेंट होना जरूरी है. वी नीड डेवलपमेंट. We need to develop our basic social, economical and political aspect of life, but we will have to be very much careful. हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि environment कि अगर हमारा डेवलपमेंट हो रहा है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, मतलब वो किस अगर अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो किसी चीज को किसी एनवायरनमेंट के किसी फैक्टर को डिस्टर्ब करके नहीं हो रहा है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक डैम बना, ठीक है. वो डैम अगर हम बना रहे हैं तो उस आसपास के एरिया में मान लो जैसे पानी स्टोर होगा वहां पे, तो आसपास के एरिया में कोई अगर फॉरेस्ट एरिया रिजर्व है, अगर वो उस रिजर्व को अगर वो अपने अंदर काउंटर फिट कर ले या फिर अपने अंदर फिट कर ले, तो उससे क्या होगा, उस वो जो फॉरेस्ट एरिया होगा वो तो खराब हो जाएगा वहां पे. सेकंड चीज क्या है कि अगर हम मान लो डैम बना रहे हैं तो आसपास के एरिया के जो लोकल्स होंगे वो वहां से, वो हो सकता है वो इंडिजिनस पीपल्स होंगे जो वहां बहुत दिन से रह रहे हैं, जो ट्राइबल्स होंगे जो बहुत दिन से बहुत टाइम से वहां रह रहे हैं. दे कैन ऑल्सो बी डिस्टर्ब बाई दैट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट हुआ, डैम्स बना, लोग यूज कर रहे हैं डैम की, बट उससे ये देखना होगा कि हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं हुआ होना चाहिए. इसको ही कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी. मतलब इकोनॉमी शुड बी बैलेंस्ड in such proper manner that it should not affect the environmental conditions, it should not affect the sustainability of any condition. Likewise, sustainable development का मतलब क्या हुआ? Sustainable development means the development by which we should not be. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए बट हमारे फ्यूचर को उस चीज से डिस्टरबेंस ना हो. That is, it should not affect the future generation. That is, development should be there. It should be there, but it should not affect the future generation. Okay, this is all about green economy. Okay, लेकिन ग्रीन इकोनॉमी जो कहती है क्या वो सच में है? इज इट रियल? इज इट रियल और नॉट, ये हम समझते हैं कि जो भी ग्रीन इकोनॉमी आर्ग्यू करती है उस चीज में वो इफिशियंट है कि नहीं. इज इट इफिशियंट और नॉट? But if there is any development in any part of the country, there are many disturbances. You can see like in Africa, if there is a gold mines, the mining process may disturbs the land, species, as well as the locals, the tribals and all. So you can see that gold mines, extracting gold from the mines is very much economical for us, for human beings, but also there is a disturbances of land, species and local tribes there. So you cannot say we will have to manage economy with some green factor, like economy with some green factor that will help the environment also, and our economy should not also be slowed down. Okay, now in case of India, what are the green economy context for Indian environmental conditions are that accordingly, green economy in India is seen in the context of sustainable development and inclusive economic growth, including poverty eradication. Likewise, we have connected in India, we have connected green economy
with economic development, sustainable development, and also with the eradication of poverty. These all are the three dimensions. If we will talk about green economy, that elite that may infer to the elite terms, because green economy is sustainable only when people are getting their foods and people are getting their basic necessities. Because in India we are deprived of many things, like economical development should be there. It should be sustainable development, eradication of poverty. The main factor is poverty eradication. So we will have, if we are considering the green economy, we will have to take care of green factor and different many factors which are already existing in, that is pre-existing in our society. Like economic development का ध्यान तो रखना ही होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना होगा, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी का भी ध्यान रखना होगा. इन सब के साथ साथ हमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी ख्याल रखना होगा. ठीक है, तो ये सारे डायमेंशंस का वो ख्याल रखना होगा, तभी हम लोग इस चीज पे आगे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं, ग्रीन इकोनॉमी की बात कर सकते हैं. क्योंकि अगर ये सारी चीजें अगर बैलेंस्ड वे में नहीं हो रही हैं, तो वी कैन नॉट survive. Like if we are talking about only environmental degradation and economic development, and we are not talking about the sustainable development and eradication of poverty, then green economy is not a term for India. I'm talking about India now. What green economy focuses on is that green economy focuses especially on the fundamental changes that are required to ensure that economic systems are made more sustainable. Green economy also focuses on the way to overcome deeply rooted cause of unstable economy, unsustainable economic development. Likewise, green, जैसे मान लो ये ग्रीन इकोनॉमी क्या क्या किस किस फैक्टर को ध्यान रखती है. फर्स्ट फैक्टर तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्लियर है कि डेवलपमेंट शुड बी देयर फॉर द प्रेजेंट जनरेशन. डेवलपमेंट शुड बी देयर बट इट शुड नॉट अफेक्ट द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. अगर मान लो आप बहुत डिप्लीट कर रहे हो और माइनिंग कर रहे हो बहुत ज्यादा गोल्ड के लेयर को, या फिर आप मान लो कि कोल बहुत ज्यादा निकाल रहे हो बहुत ज्यादा, तो ऐसा ना हो कि हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को कोल मिले ही ना. ऐसा भी हो सकता है जैसे पानी हम लोग ग्राउंड वाटर लेयर नीचे जाते जा रहा है, अगर हम लोग एक्सेसिव यूज कर लिए, मल्टी पर्पस के लिए यूज तो करते ही हैं, लेकिन अगर उसको हम लोग बहुत ज्यादा रेकलेस यूज कर लिए, हो सकता है इन फ्यूचर ग्राउंड वाटर हमें मिले ही ना, हमारे फ्यूचर को मिले ही ना. तो ये एक तरीके का सस्टेनेबल मैनेजमेंट तो है नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ग्रीड के लिए तो यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे वाले फ्यूचर जनरेशन का ख्याल नहीं रख रहे. तो सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा, अगर ग्रीन इकोनॉमी का ख्याल रखना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंसीडर करना होगा. ठीक है, और साथ साथ में हम लोग अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी ध्यान रखेंगे. ठीक है. A green economy is one whose growth in income and employment is driven by public and private factor. Okay. Therefore, green economy is not only related to government issues or not only related to environmental ecology issue, it also related to poverty, sustainable management of resources which are free, as well as which we have created, human creation. Okay, so we will have to be very much careful about these factors for green economy. If you are thinking about a green economy, it should be in the direction of growth in income as well as in employment, and it should also have taken care of the sustainability of the development, likewise in both the investment. For green economy, what we can do is that we can reduce the carbon emission. जब भी पॉल्यूशन की बात आती है तो कार्बन इमिशन सबसे पहले खड़ा होता है, क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है. I have already explained about global warming, the different global warming greenhouse gases in my previous lecture of environment and ecology. You can see in the playlist. I have already added that. But if you have to be
concerned about green economy, you will have to take care of the word carbon emission, because carbon emissions should be cut down, it should be reduced. Okay, अब देखो, सिर्फ कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना कैसे करेंगे? करने के लिए हमें सबसे पहले बेसिकली क्या करना होगा कि हमें जो हम यूज कर रहे हैं एनर्जी, जो एज ए एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं, उसको रिप्लेस करना, उसको ऑल्टरनेटिव कोई वे खोजना होगा। जैसे मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे ऐसी कार हैं जो पॉल्यूशन इमिट करती है 15 ईयर से ज्यादा, डीजल और पेट्रोल जो व्हीकल्स है, उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक कंसेप्ट आ रहा है धीरे धीरे। अगर ये फुलफिल हो गया, अगर ये 100% इम्प्लीकेबल हो गया, अगर ये 100% इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो इससे एक चीज तो होगा, जो गाड़ियां जो इमिट करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, NOx, SOx, वो सब तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इतना अगर मैनेज होगा तो भी अच्छा है। साथ साथ में एक ये भी कंडीशंस होगा कि अगर आप इस चीज को मैनेज कर पा रहे हो, तो आप इजिली कार्बन इमिशन को कम कट कर सकते हो, जिसके कारण ग्रीन इकोनॉमी इफेक्टेड हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है ग्रीन इकोनॉमी में। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, मोस्टली द ग्रीन इकोनॉमी इज अबाउट सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन जॉब्स, लो कार्बन। ग्रीन इकोनॉमी रिलेटेड किस किस चीजों से है? फर्स्ट चीजें हैं सस्टेनेबल एनर्जी, jobs which are green, carbon economy, agriculture, green building, forestry। मतलब अगर आप इकोनॉमी और साथ साथ ग्रीन टर्म को साथ रखते हो, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना होगा, ठीक है। डिफरेंट कंडीशंस लाइक वेस्ट मैनेजमेंट। तो इतना इजी नहीं होगा ट्रांजिट करना फ्रॉम बेसिक इकोनॉमी टू ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी जाने के लिए आपको कार्बन इमिशन को कम करना होगा, यूजेस ऑफ कार्बन कम करना होगा, ग्रीन बिल्डिंग की तरफ फोकस करना होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ध्यान देना होगा, फिर ऑल्टरनेटिव्स निकालना होगा, जैसे कि विंड फार्म्स हो गए, सोलर पैनल हो गए, सोलर पैनल का यूज करना होगा, ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि विंड फार्म हो गए, फॉरेस्ट्री करना होगा, ग्रीन बिल्डिंग पे फोकस करना होगा, एग्रीकल्चर पे जो फ्लूम्स होते हैं, जैसे मान लो जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको बर्न आउट करते हैं अगर फार्मर्स, उसको रोकना होगा, कार्बन इकोनॉमी पे ध्यान रखना होगा, ग्रीन जॉब्स क्रिएट करना होगा, सस्टेनेबल एनर्जी पे फोकस करना होगा। ओके, सबसे पहला बात इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हमको जानना है कि डीकार्बोनाइज करना होगा चीजों को। हर चीज में, हर एक चीजों में हमें कार्बन यूज करना, कार्बन का इमिशन कम करना होगा। यू विल हैव टू मैनेज द कार्बन इमिशन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन इमिशन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर एज वेल एज द environmental conditions. Okay, so if you want to commit the environmental committee that our economy should be transient, that is, it should be transferred from economy, general economy, to the green economy, you will have to be very much careful about the sustainable energy, green jobs, carbon economy, decarbonizations of many component of in the atmosphere, less emission of the carbon, agricultural effect, green building, forestry, solar, wind farm and all. Now moving further, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं टू अडॉप्ट ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी, व्हाट आर द मेजर्स दैट वी कैन टेक टू अडॉप्ट ग्रीन इकोनॉमी, तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह सकता है, फर्स्ट थिंग इज दैट एनर्जी ऑडिट कैन रिड्यूस योर बिल्डिंग्स क्लाइमेट फुटप्रिंट एंड लीड टू सिग्निफिकेंट सेविंग इन एनर्जी कॉस्ट। पहली चीज एनर्जी ऑडिट, मतलब हम लोग ये जानेंगे, वी विल नो दैट वेयर आवर एनर्जी कंजम्पशंस आर, हमारा एनर्जी कहां से कहां कंज्यूम हो रहा है, सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहा है। लाइक अगर एसी यूज कर रहे हैं घर में, क्या जरूरत है, जब वो जरूरी हो तभी वो स्विच ऑन हो, जब वो यूज में ना हो स्विच ऑफ हो। तो हमें इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, एक परफॉर्मा क्रिएट करना होगा कि हमारा एनर्जी वेस्ट कहां हो रहा है, एनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, एनर्जी ऑडिटिंग होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मेनी पार्ट, अब हमारे वर्ल्ड में बहुत जैसा जगह है जहां पे हम लोग ओवर फिशिंग करते हैं।
Overfishing in many parts of the world threatens to deplete future fish stocks. We can avoid this by working to promote sustainable fishing practices. Likewise, we will have to find the alternate way, alternate things to reduce the overfishing, ताकि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी मिल सके और साथ साथ उनकी स्पीसीज भी प्रोटेक्ट हो सके. Now, third thing is deforestation. Everyone knows about that, deforestation. सबको पता है कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो 20% पूरे वर्ल्ड का ग्रीन हाउस गैस इमिशन का रीजन है. तो इस चीज को हमको ध्यान रखना होगा कि डिफॉरेस्टेशन कम से कम हो, एफॉरेस्टेशन सबसे ज्यादा हो. इस चीज का हमको ख्याल रखना पड़ेगा. ठीक है. सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट शुड ऑल्सो बी देयर. ओके. डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है, आसपास जो लोकल ट्राइबल्स कम्युनिटी है उनका ख्याल रखना है, इकोसिस्टम को मैनेजमेंट करना है, वेटलैंड्स का ख्याल रखना है, वेटलैंड्स का ख्याल रखना है, इको सेंसिटिव जोन ESZ जो होता है जहां पे नॉर्मल अलाउड नहीं होता है कोई भी इंडस्ट्रियल और कोई भी वर्किंग प्रैक्टिसेस, उसका ख्याल रखना है. ट्राइबल्स को सेव करना है, जो इंडिजीनियस पीपल्स हैं या फिर जो ट्राइबल्स हैं उनको ख्याल रखना है. ओके. और जैसे पेपर यूज करते हैं रेकलेस, तो आप यूज कर सकते हो, बट पेपर का ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पेपर्स भी आते हैं, उनका यूज करो. पेपर रिडक्शन करो, इससे भी एक बहुत बड़ा हेल्प मिल सकता है. ठीक है. अब और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप कार पूलिंग कर सकते हो, लाइक ओला, उबर, कार पूलिंग कर सकते हो. जैसे अब मान लो 50 एम्प्लॉइज है कहीं काम कर रहे हैं और वो अपनी अपनी कार से आते हैं, तो 50 व्हीकल्स इमिट कर रहा है पॉल्यूशन इन द एयर. अब ये 50 क्या करेंगे, 5-5 के सेगमेंट में पूल कर लेंगे या 4-4 के सेगमेंट में पूल कर लेंगे. लाइक एक सिंगल कार होगा या फिर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, तो सारे एक साथ ही आ सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि एमिशंस होगा वो 50 टाइम्स रिड्यूस हो सकता है, 40 टाइम्स रिड्यूस हो सकता है. तो इस चीज का ख्याल रख सकते हैं हम लोग. ठीक है. मोस्टली अगर छोटे छोटे जगह पे जाना है, छोटे, इफ यू हैव टू विजिट फ्यू स्मॉलर और फ्यू लेस लेंथ राइड्स, शॉर्ट ट्रिप्स, यू कैन यूज साइकिल्स. So these are the terms factor which you can use to explore the green economy factor, because this is not a sudden or this is not the instant thing that we can change all the screen, but we will have to work over that. ठीक है. अब likewise वाटर को सेव करने के लिए भी डिफरेंट स्टेप्स लेना होगा. वाटर कंजप्शन, टेकिंग स्मॉल स्टेप टुवर्ड वाइज वाटर यूज कैन हेल्प कंजर्व दिस प्रीशियस रिसोर्सेस ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर इज वेरी प्रीशियस. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी and also if you are talking about the green economy, you will have to be very much careful about water use of water, saving, conservation of water. Okay. Resource efficiency is a key to a green economy, and water is one of our most precious resources, so we will have to be very much careful about the conservation of water, because water is, the importance of water. And also there should be a development of clean energy, as I have already discussed in the previous slide, that it should be the development of clean energy should be use of renewable energy by using solar, wind, tidal, etc. Okay. Now these are the factors that I have used to explain green economy. Green economy is what? It is the basic need of our country. It is a basic need of the world, entire world, because global warming is increasing its leg. So you can say that we will have to manage and we will have to think about that. Likewise, I have also taught about the green building concept. Like green building concept भी एक बहुत अच्छा वे है बहुत सारे emissions को रोकने का. फिर water conservation funnel अगर अपने rooftop पे बना रहे हो तो वो भी बहुत बहुत अच्छी जरूरी चीज है. तो इस चीज का ध्यान रखना होगा. I will see you in the next lecture.